नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंसानी लाशों पर वजीर आजम का ओहदा हासिल करने वाले बासे शर्म, दिल्ली कत्ल गारतगिरी की अदालती तहकीकात का मुतालबा, कुल जमाती वफ्द रवाना किया जाए। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी की जज्बाती बहस। पुराने शहर की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया जाए। मेट्रो रेल, अक़लियती हाउसिंग कॉरपोरेशन, अक़लियती स्कीमों को ग्रीन चैनल में शामिल करने का अकबर ओवैसी ने किया मुतालबा। तेलंगाना में कोरोना वायरस से एक शख्स भी मुतासिर नहीं, मुतासरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिस्चार्ज किया जाएगा। वजीर सेहत ई राजेंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खातून डॉक्टर को 7.5 करोड़ रुपए का झांसा देने के इल्जाम में 4 बैरूनी शहरी गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में हुई बदतरीन कत्ल गारतगिरी की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाने, मुतासरा इलाकों में कुल जमाती वफ्द का दौरा करवाने का मुतालबा किया है। लोकसभा में दिल्ली कत्ल गारतगिरी के लिए हुकूमत को उन्होंने राज जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि चाहे 1984 के दिल्ली में मुखालिफ सिख फसादात हों कि गुजरात में मुसलमानों की नस्लकशी, हुकूमत हमारे ताबूत पर अपनी सियासी इमारत खड़ा कर रही है, ये बात से शर्म है। उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को शर्म आनी चाहिए जो लाशों पर वजीर आजम बना है। जज्बात से भरी अपनी बहस में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क के मुसलमान इस मुल्क के दस्तूर के तहफ्फुज़ के लिए पेवंद खाक होने तैयार हैं। मुल्क के दस्तूर में तहरीर करदा भाईचारगी के लफ्ज का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल किया कि मुनज़्ज़म तरीके से शरपसंदों को पुलिस तहफ्फुज़ दिया गया। नौजवान फैजान को पुलिस ने किस बर्बरियत के साथ कौमी तराना पढ़ने को कहा और उससे मौत के घाट उतार दिया गया। 19 मसाजिद को तबाह किया गया, जहां पर 4 सिलेंडर्स ब्लास्ट किए गए। एक मस्जिद पर जाफरानी परचम लहरा दिया गया। अनकीठो के फैजान, यह हिंदुस्तानी की मौत है। अकबरी बेगम की मौत का भी उन्होंने तस्करा किया। This great distinction of presiding over 2 programs. This is the second one, and he has deliberately failed in discharging his constitutional duty of saving life, limb and property of every Indian, especially the Indian Muslims. Sir, when Mr. Modi was hosting Mr. Trump, it's a providence that the Navy band was serenading. What was the Navy band playing, sir? Can you feel the love tonight? When Indians were being butchered and their dead bodies were dumped in a nala, the Navy band was playing Can You Feel the Love Tonight. I don't know what love Mr. Prime Minister felt for whom. Sir, third point which I just heard in the whole debate was that the government is not responsible. May I ask to you, to the Honorable Home Minister and the Prime Minister, what is second schedule of allocation of business rules 1961, Ministry of Home Affairs, policing law and order in NCT of Delhi, internal security, IB, CRPF, preventive detention, C, criminal offense against minorities and other vulnerable groups. The government says we didn't have enough forces. तो सभा की कार्रवाई माननीय गृह मंत्री जी के जवाब तक बढ़ा दी जाए। Sir, the government side said we don't have enough forces. What is Section 39 of the Delhi Police Act 1978? The LG has enough powers to even call the army. Many inquiry commissions have said very clearly that if a communal carnage continues for more than 24 hours, it is a pre-planned program wherein the state not only abets the mobs, but it is the police who will play a major role in the destruction and the carnage. To call it a communal riot is a joke. This is a program, sir. And it has to be called in that way only. Sir, the Constitution of India in its preamble talks about fraternity. But it says fraternity must assure the dignity of the individual. What is my dignity? I want to know from you. Do you have any remorse on your faces?
Do you have any embarrassment for what has happened right under you? No. You have no embarrassment. You take pride on the dead bodies which are now lying in the nalas of Delhi. Sir, the Constitution talks about fraternity and it says fraternity must show the dignity of individual. What is my dignity? When my 19 masjids have been destroyed or damaged, 4 cylinders have been put inside a masjid and the masjid is burned, what is my dignity when I see a saffron flag being erected on my masjid? What is my dignity when a boy called Faizan was being shot dead and he was forced to recite Jan Gan Man? What is my dignity if an 85-year-old Akbari Begum was burned alive? What is my dignity if 1,000 Muslims' homes have been burned? What is my dignity, sir, when children have become orphans? Where is the dignity? Please show me where is the dignity. Do you have any humanity left in you? For God's sake, show your humanity. This is not a question. This is not a question of Hindu or Muslim. This is a question of whether you will rise up to your constitutional duty. Sir, the Prime Minister showed his emotions. The Prime Minister, in fact, cried when a lady called him an incarnation of God. What kind of a God is my Prime Minister, whose heart never beats, whose eyes never cry for what has happened in Delhi? He cannot be called a God. He cannot be called a Prime Minister as well. It is not the problem. This government must go. And I appeal to the people of India, especially my Hindu brethren, save the soul of this country. It is now your responsibility. You save the soul of this country. Sir, let me also point out to you, that what about videos of police? Why haven't even government officially announced that 54, 59, 60 people have died? Why hasn't the Honorable Home Minister said so many boys have been arrested? And you know what, sir, right now, I say with responsibility, 1,100 Muslims are in illegal detention. The police is taking rishwat. The police is taking bribes. Where is the investigation? A murder of Ankit, a murder of Faizan, a murder of anyone has to be probed impartially. A life of Ankit cannot have more premium over life of Faizan. These are both Indians, but the misfortune is one was a Muslim, other was not a Muslim. And that is why you see from the government side, they have deliberately talked about a higher premium of a life who doesn't happens to be Muslim. Sir, let me also bring to your notice of videos wherein की बात है पुलिस हमारे साथ है. What is this, sir? Will you bring out those videos and have an impartial inquiry done? Sir, let me also bring you to notice that the beatings of Zubair was used by ISIS to put on their magazine. Do you want the Muslims to be radicalized? You have radicalized your Hindu community. Please don't radicalize us. We don't want to join ISIS. We are fighting them. We will die saving this constitution. We will hold the constitution dear to us. And why is it that I'm being penalized? Because I am saving the constitution. That is my only crime. I was saving the constitution. I was reading the preamble. I was ensuring that constitutional rights are given to me. That is the crime which this government is punishing me for. And that is why you see this carnage has happened. This ghost, this Frankenstein which you have created, believe me, this will engulf. Let me put on record and say, sir, I want to thank the Sikh community. I want to thank Mr. Baghel, who suffered 70% injuries, burn injuries, and saved 7 Muslim lives. These are small lamps burning in the tsunami of Hindutva hate, which has engulfed our country, sir, which will destroy our country. This government wants to do that, but we will protect ourselves. 17 crore Muslims will lay down their lives. If possible, we'll build our graves over here, but we will not allow this carnage to continue, sir. In conclusion, I demand that an all-party delegation be sent to the areas as it was sent to Gujarat. I demand a commission of inquiry by a sitting Supreme Court judge or High Court judge to go into the actual facts. And we have no faith in your SIT. Ask me, the minister over here, 84 communal riots, Nelli massacre, Gujarat, everyone who presided over this program, they have made their political palaces on my grave.
They have become statesmen. You have become Prime Minister on my dead body. Shame on you. I hope people of India will throw you out very soon. Thank you, sir. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हैदराबाद के पुराने शहर की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया जाए। आम बजट मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने जहां हुकूमत की सितारिश की, वहीं पुराने शहर को नजरअंदाज करने पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। आम बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, उसमें 2,000 करोड़ रुपए आइंदा मालियाती साल में मख्तस किए जाएं। इस्तांबुल नहीं तो कम से कम साफ सुथरा शहर बनाया जाए और मेट्रो वाटर वर्क्स के लिए रकम का कुछ हिस्सा मख्तस करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। ग्रुप 1 के इम्तिहानात अब तक नहीं हुए। ग्रुप 1 के इम्तिहानात रखिए, डिस्ट्रिक्ट्स नए बना दिए गए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कैडर आज तक भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन का काम, डिस्ट्रिक्ट को कामयाब बनाने के काम के लिए आज वहां पे कोई लोग नहीं है। तो इससे कैसा होगा? तो मैं आपके जरिए दरखास्त करूंगा और फिर पीआरसी के लिए भी मैं दरखास्त करता हूं कि पीआरसी एक लॉन्ग पेंडिंग है। कई सरकारी मुलाजिमीन पीआरसी के लिए मुसलसल दरखास्त कर रहे हैं, उस पर भी गौर करिए। और 2 बेडरूम के ताल्लुक से कहूंगा कि 2 बेडरूम के फ्लैट्स बनाने का आपने वादा किया, मुझे उम्मीद है और तवक्को भी है कि 2 बेडरूम जरूर तकमील होगा। लेकिन फिर से कहूंगा, पुराने शहर में 2 जगह पे 2 बेडरूम है सर, एक मेरे एरिया में, एक फारूक नगर में। सर सबके पेंडिंग बिल्स दिए जाते हैं, पुराने शहर के 2 बेडरूम लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर के बिल नहीं दिए। रोता हुआ ऑफिस में आके मुझसे कहा कि अकबर भाई अगर अब पैसे नहीं मिले तो फांसी पे लटक जाऊंगा, 10 करोड़ रुपए मेरा बाकी है। रो रहा था। अरे वो पैसे रिलीज करिए साहब। और फिर यह भी वादा किया गया कि आप 1 लाख घरों को पैसा देंगे। सब मैं डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि घर की मरम्मत के लिए, रेनोवेशन के लिए 1 लाख घरों को देंगे, आपने वादा किया, कितने पैसे देंगे वो बोलिए। और उस 1 लाख में 50,000 हैदराबाद शहर में दीजिए। जीएचएमसी के इंतखाबात हैं, अगर आप देंगे तो उससे खुश होंगे लोग, और उम्मीद करता हूं कि इस मेरे मुतालबे पर भी गौर करेंगे। और आखिर में हैदराबाद में मेट्रो रेल मजलिस की नुमाइंदगी पर शुरू हुई थी। अकबर ओवैसी ने आज इस बात का एहसास हुकूमत को दिलाया है। वायस राजशेखर रेड्डी के दौर में अकबर ओवैसी ने खुद इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी, लेकिन आज पुराने शहर में जब भी मेट्रो रेल का नाम लिया जाता है या फिर उसकी मंजूरी की बात की जाती है, माहौलियात का बहाना लिया जाता है। अकबर ओवैसी ने यही सवाल किया कि चादर घाट के पास मेट्रो स्टेशन बना है, क्या वहां पर मंजूरी ली गई थी? आज शहर हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन आई है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश असेंबली के रिकॉर्ड्स को निकाल कर देख लीजिए। शहर हैदराबाद में अगर मेट्रो ट्रेन आई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से आई है। मैं सबसे पहले राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में, जब हुकूमत में हमारे हरीश राव साहब भी मिनिस्टर थे, सेटविन के मिनिस्टर थे उस वक्त मैंने मेट्रो ट्रेन का जिक्र किया था। I had spoken about the metro train of Delhi, and the then honorable Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy Sahab agreed and said, we'll take an all-party delegation and go and visit the Delhi metro. All-party delegation had gone there. I remember Mr. P. Janardhan Reddy Sahab, Khairtabad MLA then, he was the one who was fighting, yes sir, who was fighting for monorail. You were also there, sir, honorable Deputy Speaker, sir. आप भी थे उस वक्त। जनार्दन रेड्डी साहब मोनोरेल बोलते थे, मैं मेट्रो ट्रेन बोलता था। असेंबली में गड़बड़ होती थी और मेट्रो ट्रेन को लाने के लिए हमने जिद्दोजहद की। उस वक्त सत्यम जो था उसका उल्टा नाम माइटास रखा था, माइटास को दिया गया था। सत्यम के डूबने के बाद फिर से वो टेंडर कैंसिल हुआ और मेट्रो ट्रेन दूसरों को एलएनटी को दी गई। उसके बाद में सर मेट्रो ट्रेन आई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से, अकबरुद्दीन ओवैसी के मुसलसल लड़ने की वजह से। लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि पुराने शहर में ही ट्रेन नहीं आई। जो ट्रेन के लिए लड़ता रहा मेट्रो के लिए, उसके इलाके में मेट्रो नहीं आई, शहर में आ गई। लेकिन अब फेज 2 में प्लान आउट कर रहे हैं, तो फेज 2 में भी ओल्ड सिटी को नजरअंदाज किया गया है।
میں ریکارڈ میں آ کے کہہ رہا ہوں کہ فیز 2 میں وعدہ کیا گیا تھا, جب میٹرو ٹرین لایا گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ ملک پیٹ سے ہوتا ہوا, اویسی ہاسپٹل سے ہوتا ہوا فلک نما کو جائے گا, انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک جائے گا. لیکن آج بھی فیز 2 میں پرانے شہر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے الائنمنٹ دیا. چیف منسٹر صاحب نے گورنر ایڈریس میں کہا کہ اکبر صاحب MIM نے بھی الائنمنٹ پروپوز کیا تھا, اس وجہ سے رکا. ہاں, ہم نے الائنمنٹ پروپوز کیا تھا اس لیے کہ 93 ریلیجس سٹرکچرز آ رہے تھے, اس لیے الائنمنٹ دیا تھا. اور ہم کو الائنمنٹ, نئے الائنمنٹ کو منظور نہیں کیا گیا, یہ بول کر نہیں کیا گیا کہ موسیٰ ندی میں انوائرمنٹ کلیئرنس لینا پڑتا ہے, ہم موسیٰ ندی سے میٹرو نہیں لے جا سکتے. لیکن سر, چادر گھاٹ کے موسیٰ ندی کے اوپر سے کیا میٹرو نہیں گئی؟ اب کیا نہیں گئی؟ جب مسلمانوں کا پرانے شہر کا معاملہ آتا ہے تو ناانصافی کی جاتی ہے اور وجوہات بیان کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ویسا, ویسا نہیں ایسا, بہانے بنائے جاتے ہیں. لیکن آج کیسا چادر گھاٹ پہ موسیٰ ندی پہ میٹرو کا سٹیشن بھی آتا ہے, میٹرو کراس بھی ہوتی ہے موسیٰ ندی میں. کیا وہاں پہ انوائرمنٹ کلیئرنس لیے؟ کیا گورنمنٹ آف انڈیا سے کلیئرنس لائے؟ نہیں لائے, ضرورت نہیں. ہم بولے تو کلیئرنس کی بات آتی ہے, آپ چاہے تو کلیئرنس کی بات نہیں ہوتی. یہی ناانصافی ہے جو ہم بار بار بتاتے ہیں اور یہی دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس تعلق سے بھی دیکھیں گے. مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے GHMC ایکٹ کے مسئلے کو بھی اٹھایا. ان کا کہنا تھا کہ ایکٹ میں ترمیم سے پہلے ارکان مقننہ کا اجلاس طلب کیا جائے. امینڈمنٹ ہوگا GHMC ایکٹ میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ ضرور امینڈمنٹ کیجئے, لیکن اس امینڈمنٹ کے وقت شہر حیدرآباد کے GHMC ایریا کے پورے MLAs اور MPs کی ایک میٹنگ بلائیے امینڈمنٹ ٹیبل کرنے سے پہلے, تاکہ ہم آپس میں بیٹھ سکیں, دیکھ سکیں کہ امینڈمنٹ کیا ہے. جو میونسپل ایکٹ جو لایا گیا, جو اس ایوان میں پاس کیا گیا, وہ ایوان میں بھی کئی نقوص ہیں. اکبر اویسی نے مسلمانوں کے کئی مسائل کو لے کر آج ایوان کو جھنجھوڑ دیا. انہوں نے مسلمانوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو 12% سے زائد میانے کے وظائف جاری کیے جانے چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے, انہیں 12% وظائف جاری کیے جانے چاہیے. سر, آسرا پینشن and SC/ST ویلفیئر, I would say sir, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آسرا میں گورنر ایڈریس میں آلریڈی یہ اشورنس دیا گیا کہ ایج لمٹ کو کم کیا جائے گا. 57 years old pension would be affected for the new financial year. میں یہ بات ضرور کہوں گا, اور ریکارڈ آ کر کہوں گا کہ یہ پینشن جو دی جا رہی ہے یہ ایک غیر معمولی کام ہے, بہت اچھا کام ہے, اور حکومت کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. میں کروں گا کہ یہ اتنی اچھی طریقے سے یہ کام کو کیا جا رہا ہے. آسرا پینشنز کوئی معمولی کام نہیں ہے, کوئی ایسا نامنل پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے. حکومتیں دکھاوے کے لیے تھوڑے پیسے دے دیتے ہیں, بتاتے ہیں. لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب, سر, میں آپ کے ذریعے حکومت سے ایک مطالبہ, ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ کے 40 لاکھ سے زائد جتنے بھی یہ پینشنز ہیں, آپ اس کے ڈیٹیلز کو منگا کر دیکھیے. آپ کی حکومت نے وعدہ کیا کہ مسلمانوں کو 12% تحفظات دیے جائیں گے, لیکن یہ ٹوٹل جو پینشن دی جا رہی ہے اس میں 12% مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے, بہت کم ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مسلمانوں کے ڈسٹرکٹ وائز آبادی کے تناسب کے حساب سے پرسنٹیج دیا جائے. اس میں انصاف ہوگا مسلمانوں کے ساتھ, اقلیتوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, سب کے ساتھ. سر, اردو اساتذہ کے تقررات کے معاملے میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے. اردو اساتذہ کے عدم تقررات کو لے کر اور اردو کورسز جس طرح سے ختم ہو رہے ہیں اس پر بھی اکبر الدین اویسی نے آج ایوان کو جھنجھوڑا. For the 2020 table with the state budget in the assembly portrays a favorable picture of education indices in the state. However, closer look would reveal that a private school which account for the 26% of all schools in the states are catering to 53% of school-going children, and this means that the enrollment of government-run schools is falling while more and more children are going to private schools. The government should fill up
all the teaching posts in government-run schools to check low enrollment, higher dropout rate, and diversion of private schools, sir. At the intermediate level, only 18% of junior colleges are run by the government, and 82% of colleges are in private sector, sir. Similarly, there are more degree colleges, professional colleges, technical institutions run private management than by the government, sir. Sir, a majority of students are thus enrolled in private junior degree, postgraduate, professional and technical colleges, mainly because the government colleges of these levels are beset and shortage of teaching and non-teaching and staff proper infrastructure, sir. Sir, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया। उर्दू के टेक्स्ट बुक्स टाइम पर नहीं आते, चाहे वो 10th के हो, चाहे वो इंटरमीडिएट के हो और ग्रेजुएशन के। सर, आपको सुन के हैरत होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मेरी इस बात का नोट लेगी कि उर्दू मीडियम के जितने भी डिग्री के पोस्ट जो सैंक्शन है उसको खत्म किया जा रहा है। उर्दू डिग्री कोर्सेज को गवर्नमेंट कॉलेजेस में खत्म किया जा रहा है। सर, ये एकेडमिक ईयर के इन बिटवीन में खत्म कर रहे हैं। आज आप बताइए सर, वादा किया गया फलकनुमा डिग्री कॉलेज के ताल्लुक से, चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज के लिए। सर, आई वांट टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट 25 लाख रुपया मैंने देकर फलकनुमा डिग्री कॉलेज की एक बिल्डिंग को बनाया। 5 करोड़ रुपया ऐलान किया, नहीं हुआ। सर, मैं 2 साल से डिग्री के लेक्चरर्स की तनख्वाह दे रहा हूं, सैंक्शन पोस्ट को खत्म करे, वैकेंसीज को फिल नहीं कर रहे। चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर्स, लेक्चरर्स नहीं है। अहमद बलाला लोकल एमएलए वहां पे लेक्चरर्स को अपॉइंट करके अपने जेब से पैसे दे रहे। तो ये उर्दू मीडियम के साथ ये नाइंसाफी क्यों? मैं बार बार कह रहा हूं, स्पेशल डीएससी बुलाने का वादा किया गया और फिर इंटरमीडिएट के 68 लेक्चरर्स को एब्जॉर्ब करने का हमारे मुतालिबे पर चीफ मिनिस्टर साहब ने मंजूरी दी। मंजूरी देने के बाद में आज उनको परमानेंट भी नहीं किया गया। सो सर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज सर। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो देगी। अक़लियती बहबूद के बजट में रकम तो मख्तस की जाती है, लेकिन वक्त पर रकम जारी नहीं की जाती और इससे कई स्कीमें मुतासिर हो रही हैं। यही बात अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज ऐवान में रखी और कहा कि कई स्कीमों को ग्रीन चैनल से निकाल दिया गया है, सिर्फ टिमरीज को रखा गया है और तमाम स्कीमों को ग्रीन चैनल में रखा जाना चाहिए ताकि स्कीमों पर मौसर अमल हो सके। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके जरिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब के इल्म में एक बात लाना चाहता हूं। अगर आपको याद होगा, आज से 4 बरस पहले मैंने एक मुतालिबा किया था कि माइनॉरिटी वेलफेयर का जो बजट है उसको बास चीजों को आप ग्रीन चैनल में डालिए और चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया असेंबली में कि ये चीजें ग्रीन चैनल में लिए जाएंगी। एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा मेरी सियासी जिंदगी की कि ग्रीन चैनल में माइनॉरिटी बजट को शामिल किया गया, लेकिन आज सिर्फ टिमरीज के लिए ग्रीन चैनल है, दूसरों के लिए ग्रीन चैनल नहीं है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, आज आप क्या हाल है उसका देखिए। मेरे पास पूरे आदाद शुमार है, मैं बताना चाहता हूं आपसे। माइनॉरिटी डिमांड्स में जब आऊंगा तो मैं उस पर मुकम्मल इलैबोरेट करूंगा, लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हुकूमत संजीदा है। हुकूमत जरूर मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करना चाहती है, हुकूमत संजीदा है, मुसलमानों की जिंदगी में खुशहाली लाना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा अगर हर्डल है तो इनफ स्टाफ नहीं है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में। स्टाफ की कमी की वजह से, कमिटेड लोगों की कमी की वजह से आज सही तरीके से हुकूमत जो करना चाहती है नहीं हो सक रहा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं शादी मुबारक की स्कीम पर, जहां पे 1,44,000 माइनॉरिटी लड़कियों की शादियां हुई और इस्तेफादा उठाए। 1,44,000 कोई मामूली नंबर नहीं है सर, बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं शादी मुबारक स्कीम के वजह से सर। उसके साथ साथ आई एम सॉरी टू पॉइंट आउट दैट द स्कीम्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइनॉरिटी यूथ हैव टर्न्ड आउट to be non-starters since 1.5 lakh applications are pending in sections of Telangana State Minority Finance Corporation for the last
4 years, 4 साल से 1.5 लाख दरखास्तें वैसी पड़ी हैं। अरे आप उनमें से कुछ थोड़े निकालिए, थोड़े थोड़े दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर इस पर भी संजीदगी के साथ गौर किया जाए। वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस किसी ने अगर बीड़ा उठाया है तो वो सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी है। अब से नहीं बल्कि एक अरसे से वो इस सिलसिले में जुस्तजू के साथ जिद्दोजहद करते आ रहे हैं और इससे सभी मुअतरिफ हैं कि वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर किसी ने यानी कि जुस्तजू और संजीदगी के साथ मुहिम चलाई है तो वो अकबर ओवैसी है। और आज भी वक्फ अराज़ियात को लेकर अकबर ओवैसी ने हुकूमत को इस बात पर तवज्जो दिलाई। सर, मैं बार बार 99 से लेकर आज तक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पुकारता रहा तो वक्फ औकाफी जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। औकाफ की जायदाद हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 चिल्लर एकड़ आराजी, हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की 3000, बड़े पहाड़ की दरगाह निजामाबाद, चंगी चरला और कितने ऐसी जायदादें, आज पूरी जायदादें तबाह हो रही हैं। हुकूमत क्यों नहीं? मैं सर आपके जरिए मुतालबा करना चाहता हूं कि आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट a Telangana state Waqf council on the lines of Central Waqf Council with an objective to sanction of loans on Waqf institution for development of prime Waqf properties in the state. Our neighboring states like Karnataka state has Waqf council since 1992 and they have developed 59 Waqf properties with a total cost of 7 crores and more, sir. तो मैं आपके जरिए मुतालबा करूंगा कि आप ये वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए। शहर के नौजवानों को रोजगार मिले और इस सिलसिले में अकबर ओवैसी की संजीदगी आज असेंबली में भी देखी गई। अकबर ओवैसी ने कहा कि शमशाबाद में आईटी कॉरिडोर को लाया जाए ताकि इससे नौजवानों को सहूलत हो सके। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस हाउस में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और आईटी के मिनिस्टर साहब, मेरे दोस्त केटी रामाराव साहब ने कहा था कि हां, हम आईटी का एक एक्सपेंशन करेंगे, गच्चीबौली से हटाकर शमशाबाद या ओल्ड सिटी की तरफ लाने का वादा किया गया। मैं फिर से अपने इस मुतालबे को दोबारा दोहराते हुए दरखास्त करता हूं मिनिस्टर साहब से कि आप एक आईटी कॉरिडोर को भी आप लाइए कि आज पुराने शहर में भी बेरोजगारी है। अगर ये आईटी कॉरिडोर आएगा या आईटी का कोई भी एक आएगा तो इससे तरक्की होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ताल्लुक से भी गौर करेंगे। अक़लियतों के कई मसाइल को आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में रखा। अक़लियती हाउसिंग कॉरपोरेशन कायम करने का भी आज उन्होंने मुतालबा किया। सर, मैंने इससे पहले भी मुतालबा किया था कि एस्टैब्लिशिंग ऑफ माइनॉरिटी हाउसिंग कॉरपोरेशन एज मुस्लिम हाउसिंग स्कीम इज नेग्लिजिबल। सर, मैंने आरटीआई में इंफॉर्मेशन सीख किया था और उसमें आया था कि जितने घर अब तक रियासत में बने, चाहे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हो या उसके बाद तेलंगाना हो, मुस्लिम माइनॉरिटीज का शेयर कितना है। तो हैरत हुई कि नॉट इवन 1% वाज द शेयर ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज इन द हाउसिंग। सर, राजीव गुरुकल्पा हो, JNNURM के हाउसिंग हो या जो भी हाउसिंग हो, तो मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस में ऐलान किया कि हम जियो निकालेंगे, मुसलमानों को इनके आबादी के तनासुब के बराबर का शेयर देंगे 2 बेडरूम में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वादे को भी पूरा किया जाएगा। पुराने शहर में मेट्रो रेल नहीं लाई जाती और उसके साथ साथ आरटीसी की तरफ से मिनी बसें भी खत्म कर दी गई हैं। लोग पहले बसों में जब मेट्रो ट्रेन नहीं होती है तो बसों में खड़े होकर जाते हैं, लेकिन अब वो बसों को भी खत्म कर दिया गया है। अकबर ओवैसी ने कहा कि मिनी बसों को फिर से पुराने शहर में माने के अवाम की सहूलत के लिए दस्तयाब रखा जाए। आरटीसी के ताल्लुक से भी कहूंगा सर, आरटीसी के 1000 बसों को कम कर दिया गया। कम कर दिया गया तो वो बोलते हैं ना साहब, बर्फ गिरती है तो हम बेचारों पर, तो बर्फ कहां गिरी? 1000 बसों में से जितनी भी मिनी बसेस थी, छोटी बसेस थी, बड़ी बसेस थी, पुराने शहर की बर्खास्त हो गई। अब आप बताइए सर, आप बताइए, मेट्रो ट्रेन नहीं आती, बसों में लटक लेते हुए, चिपकते हुए, खड़े रहते हुए हम सफर कर रहे थे, अब वो भी चला गया। आप बताइए, ना बस है, ना ट्रेन है, ना MMTS है, तो कैसा होगा? मैं उम्मीद करूंगा कि छोटे मिनी बसेस
जो हम किरण कुमार रेड्डी के दौर में पुराने शहर के लिए 200 मिनी बसेस हम चालू करवाए थे, पूरे बंद हो गए। खुदा के लिए उन बसों को दोबारा चालू करवा दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत तकलीफ हो रही है, कॉलेजेस को जाने तकलीफ हो रही है। शहर में कई अवाम को यानी कि राशन कार्ड मुयस्सर नहीं है, राशन कार्ड जारी नहीं किए गए। हुकूमत दावे करती है कि राशन कार्ड जारी करेंगे, लेकिन राशन कार्ड जारी नहीं किए जाते। ये एक आम आदमी का सवाल था और इसी बात को आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असेंबली में उठाया कि राशन कार्ड की इजराई होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। सर, मैं खत्म करते हुए फिर से आखिर में यह जरूर कहना चाहूंगा कि एक अहम मसला है जिसको आप भी अग्री करेंगे डिप्टी स्पीकर साहब, वो है राशन कार्डों का। सर, नए राशन कार्ड्स के लिए 1,04,16,820 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, लेकिन उनमें से ऑफिशियल फाउंड द फॉलोइंग एप्लीकेशन एलिजिबल आर नंबर्स में 5,63,119। और हैदराबाद में भी अगर हम देखेंगे तो कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। यह बहुत अहम मसला है। मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप इस ताल्लुक से भी अगर गौर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर, नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियासती असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पुराने शहर में मेट्रो रेल से मुताल्लिक सवाल उठाते हुए कहा कि अवाम बेचैनी से इसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत काम के आगाज की तारीख और वक्त के तयन का ऐलान करे। इस सिलसिले में अरकान असम्बली का इजलास तलब करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। ये शहर हैदराबाद का और पुराने शहर का एक अहम मसला है। मेट्रो ट्रेन के काम के आगाज का मुतालबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इब्तिदा से करती आ रही है और हर शख्स बेचैन है, मुंतजर है कि कब ये काम का आगाज होगा, कब लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलसिल इस सिलसिले में नुमाइंदगी कर चुके। अभी हाल में गवर्नर के इस तकरीर पर कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तवज्जो दिलाई और चीफ मिनिस्टर साहब ने तयखुन दिया कि जल्द से जल्द काम का आगाज होगा। जुमला 93 प्रॉपर्टी जो हिस्सास और मजहबी है वो इसकी जद में आ रहे थे, जिसमें से 18 मुतासर हो रहे हैं। उसका भी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत करने का जवाब में तयखुन दिया है। यकीनन मजहबी मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इस काम का आगाज होना चाहिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि इससे पहले भी कई बार सवालात किए, जवाबात आए, काम शुरू करने के लिए कहा कि शुरू हो गया, बल्कि इत्तला दी गई। मैं मिनिस्टर साहब से एक ही गुजारिश करूंगा कि अब इतना अरसा गुजरा, हर आदमी मुंतजर है, बेचैन है। बराए मेहरबानी कौन से महीने में और कब इस काम का आगाज होगा इसका तयन करे तो बेहतर होगा। एक खुशी की मसरत की लहर हवा में दौड़ेगी। हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेट्रो ट्रेन के ऊपर तवज्जो देते रही, नुमाइंदगी करते रही। यकीनन हर मजहबी मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि 18 प्रॉपर्टीज है जिसका तहफ़्फ़ुज़ टेक्निकली तौर पर फनी बुनियादों पर किया जा रहा है। यकीनन उसका अमल जरूरी है, लेकिन एक ही बात है कि काम के आगाज के लिए अगर तयखुन देने के साथ साथ तयन करे वक्त का, महीने का या किसी दिन का, तो बेहतर होगा। लोगों में एक खुशी होगी जवाब हुकूमत का सुन के। मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इस मामले में उजलत करे, जल्द से जल्द काम का आगाज करवाए तो बेहतर। और एक पुराने शहर के अवामी नुमाइंदों का यानी MLAs की एक मीटिंग इस सिलसिले में रखे तो काम की तफसीलात से बिलमुशाफा बात करके उसको तय कर किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मेरी ख्वाहिश है कि आप इसका तयन करके काम जल्द से जल्द कब शुरू हो रहा है उसका तयखुन दे तो बेहतर होगा। सैयद अहमद पाशा खादरी के सवाल का जवाब देते हुए वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों का जल्द आगाज होगा। री इंजीनियरिंग के जरिए 93 के मुंजिमला 18 मुक़द्दस मकामात मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अराजी हुसूल का मसला है, इस सिलसिले में अरकान असम्बली ताउन करेंगे तो मेट्रो रेल जंगी खतूत पर काम शुरू करेगा।
वजीर इमारत और शवारे प्रशांत रेड्डी ने नदियों पर तामीर किए जाने वाले ब्रिजेस से मुताल्लिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रियासत में जुमला 1414 ब्रिजेस तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 388 ब्रिजेस नालों और तालाब पर तामीर किए जा रहे हैं ताकि सड़कों को मजबूत किया जा सके। वजीर मौसूफ ने बताया कि 6 साल के अंदर 10,800 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तामीर अमल में आई है। इसके अलावा 26 बड़े ब्रिजेस मुख्तलिफ नदियों पर तामीर किए जा रहे हैं, जिनमें 16 ब्रिजेस मुकम्मल हो चुके हैं। इस पर अब तक 584 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। रियासती वजीर ने तयखून दिया कि जो ज़ेर इल्तिवा काम है वो भी जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में इजाफा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हर असम्बली हल्के में 4 स्कूल्स होने चाहिए। मेरा सवाल म्युनिसिपल मिनिस्टर साहब से है कि मेरे यहाँ टोली चौकी से रेती बली और नाला नगर नंगर हाउस का एक कॉरिडोर सैंक्शन हुआ है सर। ऑलरेडी एजेंसी भी अलॉट हो गई है, एग्रीमेंट भी हो गया सर, मगर उसका काम रुक गया है सर। इसीलिए रुका। हम जब भी कभी ऑफिसर से पूछते ये कहते हैं कि मेट्रो वहां से जाती या नहीं जाती। हम पहले एक बार मेट्रो वालों से फ्यूचर का प्रोग्राम पूछेंगे सर। जब पूरा चीज आप कंसर्न करके ये टेंडर कराए और आपको पूरा क्लियरेंस आए, वहां पे आज आप देखे इवनिंग्स में गच्ची बोली से जो पूरी ट्रैफिक आती सर, वहां पे बहुत ट्रैफिक जाम है। न सिर्फ वो कॉरिडोर है बल्कि अंडरपास भी है सर नाला नगर के ऊपर। ये काम फौरी टेकअप करना बेइंतहा जरूरी है। मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, ये बहुत एसेंशियल वर्क है साहब। इससे बहुत अच्छा एक्सेस हो जाएगा चौतरफ जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर महबूब केशवर ने कहा कि रियासत में मुख्तलिफ सोसाइटी के तहत जुमला 602 अक़ामती स्कूल चलाए जा रहे हैं। ST के 52, SC 104, BC के 242 और अक़लियतों के लिए 204 स्कूल चलाए जा रहे हैं। इनमें 2,75,000 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। एक तालिब इल्म पर मजमूई तौर पर 50,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने दीगर अरकान के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि अमले के तकर्रुरात और अशिया की खरीदारी का तरीक़ाकार एक है। उनका कहना था कि मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। आइंदा तालीमी साल से 71 जूनियर कॉलेजेस का आगाज हो रहा है। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एक कामयाब प्रोजेक्ट है। यौमिया 4 लाख मुसाफिरीन सफर कर रहे हैं। इसमें तोसी का हुकूमत का मंसूबा है। एयरपोर्ट तक मेट्रो को तोसी देने की DPR रिपोर्ट का हुकूमत जायजा ले रही है। उन्होंने बताया कि मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग की सहूलत फराहम करने के लिए भी इक़दाम जारी हैं। वक्फ़े सिफर के दौरान मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि टोली चौकी ता रेती बोली नाला नगर काम के टेंडर्स को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन इस सिलसिले में पेशरफ नहीं हुई। अगर ये काम मुकम्मल हो जाए तो ट्रैफिक का मसला हल हो सकता है। रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने उनके हल्के के फौजी इलाके में आम शहरियों को हो रही तकालीफ पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि मिलिट्री क्वार्टर्स को बाकायदा बनाने के लिए नुमाइंदगी की जा चुकी है और फौजी इलाके से मरबूत मुख्तलिफ इलाके जात के रास्तों को बंद कर दिया जा रहा है। लंगरौज के अंदर जो पिंचनपुरा है वहां पर एक कब्रिस्तान है। साबिका में 2007 के दरमियान में हमारे हैदराबाद के MP साहब असदुद्दीन साहब ने डिफेंस के आला अहदेदार और हुकूमत को यहाँ के मिलाकर वहां के कब्रिस्तान मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 5 एकड़ छुड़ाई थी, जिसके अंदर आज से 1 महीना पहले ये आर्मी के ऑफिसर्स वहां पर आकर फिर सर्वे कराकर 2 एकड़ जमीन फिर लेकर खबरों को भी लेकर उन्होंने एक तामीर कर रहे हैं। ये आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं। और तीसरा, जो 7 गुम्बज के सामने जो खुली कुतुब शाह नगर एक स्लम लोकेलिटी है, वो बस्ती को आने जाने का रास्ता है, वो रास्ते को बंद कर दिए। इसके लिए भी मैं कई मरतबा हुकूमत के और हमारे मौजूदा कलेक्टर मैडम को भी बताया था। और इसके अलावा कई इलाके जात के अंदर हकीमपेट हो या गोलकुंडा या रामदेवगुड़ा, इब्राहिम बाग, इन तमाम इलाका जात के अंदर जो आर्मी का एरिया है, वहां पर जो कोई काम कराते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो उनको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा। मैं आपके जरिए कई मरतबा बताया था, फिर मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। TRS के रुकन असम्बली नागेंद्र ने कहा कि उनके असम्बली हल्के के अवाम ने NPR शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करने का मुतालबा करते हुए 30,000 अफराद ने दस्तखत करते हुए वजीर आला से नुमाइंदगी की है। नागेंद्र ने कहा कि हुकूमत जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेगी। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत आदाद शुमार के जरिए अवाम को गुमराह कर रही है। आम बजट पर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि गैर महासिल आमदनी और खसारा बजट की किस तरह भरपाई की जाएगी, इसका कोई खुलासा नहीं किया गया।
उनका कहना था कि मिशन भगीरथा प्रोग्राम एक फ्रॉड है, आवाम को घर घर पानी नहीं दिया जा रहा है। भट्टी ने कहा कि गुज़िश्ता साल रियासत की तरक्की मनफी 19% थी और इस बजट में मुस्बित 25% तरक्की बताई जा रही है। असल में रियासत ने शराब की फरोख्त और खर्च देने में तरक्की की है। शराब की फरोख्त होने की वजह से दिशा जैसे वाकयात पेश आ रहे हैं। उनका कहना था कि शराब की फरोख्त पर काबू पाने की जरूरत है। डबल बेडरूम के लिए 11,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, जो कि नाकाफी है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आरटीसी मुलाजमीन को हड़ताली मुद्दत की ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने साबिक़ में आरटीसी मुलाजमीन को हड़ताली मुद्दत की तनख्वाहें जारी करने का तयक़ुन दिया था और आज इस खुसूस में महकमे फाइनेंस की जानिब से 235 करोड़ रुपए जारी करने से मुताल्लिक़ अहकाम जारी किए गए। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐवान को उसूल और अदब के साथ चलाने की जिम्मेदारी अपोजिशन जमातों पर भी आयद होती है। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला की ऐवान में वापसी का खैर मकदम करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि स्पीकर को ऐवान में दोबारा देखकर इत्मीनान हुआ है। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि अखलाकी और आईनी तौर पर ऐवान चलाने की सबसे बढ़कर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। बैरिस्टर ओवैसी ने 7 अरकान पार्लियामेंट की मौतली को वापस लेने की भी स्पीकर से दरखास्त की। बाद में 7 अरकान की मौतली को स्पीकर ने वापस ले लिया। मोहतरम स्पीकर साहब, बड़ा इत्मीनान हुआ आज आपको कुर्सी सदारत पर दोबारा देखकर। इस ऐवान को कामयाबी से चलाना और उसूल और अदब के दायरे में रखकर इस ऐवान को चलाने की जिम्मेदारी यकीनन अपोजिशन पार्टीज की भी है। यह सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मगर अखलाकी तौर पर और आईनी तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। और खास तौर से हम तमाम सियासी पार्टियों के अराकीन को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि इख्तिदार हमेशा किसी पार्टी के पास नहीं रहा। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि पावर इज नॉट इटर्नल। आज अगर हम कोई बदअखलाकी या शर्मिंदगी का काम यहां पर करते हैं तो आने वाली नस्ल इससे ज्यादा बदतमीजी करेगी। तो खास तौर से मेरी इन दोनों कौमी पार्टियों से गुजारिश है कि वो खुद इस बात को नोटिस कर लें। और यकीनन निशिकांत दुबे ने जो बात कही सही कहा। मैंने भी बैठकर यहां पर देखा था कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था। और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो इस ऐवान में। आपने फैसला लिया, हम इसका खैर मुकद्दम करते हैं। और मैं स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले। शुक्रिया। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में एक भी फर्द कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि दुबई से आने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर के 2 बार मायने हो चुके, लेकिन कोरोना वायरस मनफी साबित हुआ। बहुत जल्द इस नौजवान को डिस्चार्ज दिया जाएगा। कोरोना वायरस से मौत वाक़ हो जाती है, यह बात गलत है। कोरोना वायरस से सिर्फ 3% ही अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। कोरोना वायरस के लिए कोई दवा नहीं है, तहकीक चल रही है। बहुत जल्द उसके लिए वैक्सीन तैयार होने की उम्मीद है। दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन की स्कैनिंग की जा रही है। कोरोना वायरस से खौफजदा नहीं होना चाहिए। तेलंगाना में मजीद 3 कोरोना वायरस की जांच के मराकज कायम करने की मरकज ने मंजूरी दी है। गांधी हॉस्पिटल के अलावा काकतिया मेडिकल कॉलेज, फीवर हॉस्पिटल, IPM में कोरोना वायरस के मुआयने किए जाएंगे। तलबा तंजीम ABVP की तरफ से चलो असेंबली प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। शोबे तालीम से मुताल्लिक मसाइल को लेकर ABVP के तलबा की तरफ से चलो असेंबली प्रोग्राम का ऐलान किया गया था। एहतजाजी कारकुन जब असेंबली की बाबू दाखिले की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। इस मौके पर एहतजाजियों की तरफ से वजीर आला KCR के खिलाफ नारेबाजी की गई। असेंबली के पास कुछ देर के लिए कशीदगी भी देखी गई। एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। चिंतलमेट वाक़े सुलेमान नगर में कूलर्स के गोदाम में आग लगने से करीब 20 लाख रुपए मालियाती स्टॉक का दूसरा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। यह वाक़या चारशंबे के दिन यानी कि रात में पेश आया। शहर के 4 फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग बुझाई।
आग की जद में मुतसिला मकानात भी आ गए। वाज़ेह है कि करीब 3 साल पहले भी ऊपर पल्ली के इलाके में कूलर्स के गोदाम में आग लगी थी, जिसकी वजह से यानी कि जिस तरह के वाक़यात पेश आए 6 अफराद की मौत हुई थी। सैबराबाद पुलिस ने एक खातून डॉक्टर को झांसा देने वाली बैरूनी शहरियों की टोली को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि खातून डॉक्टर को करीब 7.5 लाख रुपए का झांसा देने के इल्जाम में 4 बैरूनी शहरियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनका एक नाइजीरियाई शहरी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 4 फरवरी को एक शिकायत मिली थी, जिसमें मुंबई की साकिन खातून डॉक्टर ने यह शिकायत की थी कि उसने डिवोर्सी मैट्रिमोनी ऑफ भारत मैट्रिमोनी में रिश्ते के लिए अपना प्रोफाइल पोस्ट किया था, जिसके जवाब में उससे डॉक्टर विपुल प्रकाश ने रफ पैदा करके बताया कि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है और यूके में मुकीम है। उन्होंने मुतासरा खातून से शादी करने का इरादा जाहिर करके उन्हें कीमती तोहफे जैसे गोल्ड ज्वेलरी, एप्पल फोन, हाथ की घड़ी और डॉक्टर्स कोरियर से भेजने का इरादा जाहिर किया। बाद में मुतासरा खातून को एक दूसरे शख्स ने फोन करके बताया कि वो कस्टम डिपार्टमेंट दिल्ली से बात कर रहे हैं और मुतासरा खातून के नाम भेजे गए पार्सल के कस्टम क्लियरेंस के लिए 7,45,500 रुपए दरकार हैं। खातून ने कस्टम डिपार्टमेंट के ओहदेदार के बैंक अकाउंट में मज़कूरा रकम जमा करा दी। बाद में मुतासरा खातून ने उससे फ्रॉड महसूस करते हुए सैबराबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 3 नेपाली और एक नाइजीरियाई मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाइजीरियाई मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 9 शिनाख्ती कार्ड, 1 पासपोर्ट, 25 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 67 चेकबुक्स, 15 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं, जबकि मुलजिमीन का एक बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिया गया है, जिसमें ज़ायद 3 लाख रुपए डिपॉजिट थे। हाउसिंग बोर्ड ने विजयनगर कॉलोनी में वाक़े हिलटॉप फंक्शन हॉल में किसी भी तरह की मामलत से अवाम को खबरदार किया है। हिलटॉप फंक्शन हॉल पर महकमे हाउसिंग बोर्ड की नोटिसें चिस्मा की गई हैं और अवाम को खबरदार किया गया है कि इस फंक्शन हॉल को लेकर अदालत में मुकदमा ज़ेर दौरा है, इसलिए अवाम इस फंक्शन हॉल से कोई मामलत न करें। यानी कि अवाम को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि वो इस फंक्शन हॉल के साथ किसी भी तरह की मामलत न करें। चादरघाट के छोटे ब्रिज के पास एक बड़ा ऑटो रिक्शा उलटने से उसमें सवार 3 खवातीन जख्मी हो गईं। तफसीलात के मुताबिक 4 शंबे के दिन यानी कि दरमियानी शब पैगो ऑटो रिक्शा में सवार खवातीन नशे की हालत में गड़बड़ कर रही थीं, जिस पर ऑटो ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा उलट गया और उसमें सवार खवातीन जख्मी हो गई। मुकामी अवाम ने ऑटो ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी खवातीन को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया है। एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 164 के पास जनखों की बेहुदा हरकतों की वजह से मुकामी अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी अवाम ने मीडिया को बताया कि जलाल बाबा नगर के इलाके में जनखों के कारोबार की वजह से माहौल खराब हो रहा है, जिसकी वजह से गैर समाजी अनासिर ने भी वहां पीने खाने और छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। मुकामी अवाम के मुताबिक जनखों को मना करने पर वो ये इस्तदलाल पेश कर रहे हैं कि वो अरसे दराज से वहां पर रहते हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। पुलिस ने ज़ेर हिरासत जनखों से तहरीरी हलफनामा लिया है कि वो मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बाज रहेंगे। मेडचल के इलाके कोमपल्ली में मन्नापुरम गोल्ड लोन के दफ्तर में सरके की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 4 शंबे और जुमेरात की दरमियानी शब सारिकों ने मज़कूरा दफ्तर की दीवार में एक बड़ा शिकाफ करके अंदर दाखिल हुए। मन्नापुरम गोल्ड लोन के जिम्मेदारों ने घर बैठे सीसीटीवी कैमरों के इस मंजर को अपने कंप्यूटर्स पर देखा और पुलिस को इत्तला दी। पेट बशीराबाद पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए मुकाम वाक़या पहुंच गई, लेकिन उस वक्त तक सारिक वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का मुशाहिदा किया है। तवक्को की जा रही है कि पुलिस सारिकों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इंसानी लाशों पर वजीर आजम का ओहदा हासिल करने वाले बात से शर्म। दिल्ली कत्ल गारतगिरी की अदालती तहकीकात का मुतालबा। कुल जमाती वफ्द रवाना किए जाए। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी की जज्बाती बहस। पुराने शहर की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया जाए। मेट्रो रेल, अक़लियती हाउसिंग कॉरपोरेशन, अक़लियती स्कीमात को ग्रीन चैनल में शामिल करने अकबर ओवैसी ने किया मुतालबा। तेलंगाना में कोरोना वायरस से एक शख्स भी मुतासिर नहीं। मुतासरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिस्चार्ज किया जाएगा। वजीर ई राजेंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
خاتون ڈاکٹر کو 7.5 لاکھ روپے کا جھانسا دینے کے الزام میں 4 بیرونی شہری گرفتار، سیبرآباد پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔